ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم ملک میں حیران کن نتائج دے گی۔ ایم کیو ایم ملک کی استحکام اور قوم کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ راولپنڈی میں کارکنوں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ انقلاب کے نعرے لگانے اور دعوے کرنے اور حقیقی انقلاب لانے میں عوام تمیز کریں۔ تعلیم، معاشی ترقی میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب ملک سے فرسودہ نظام اور چند خاندانوں کی موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم غریب عوام کی نمائندہ جماعت ہے، کوئی جماعت اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ایم کیو ایم کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے گئے۔ ایم کیو ایم بہت جلد پنجاب میں بڑا جلسہ کرے گی۔ گواہی دے رہا ہے بہت جلد اسی صوبہ پنجاب میں ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کرے گی جو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ ایم کیو ایم ملک کی استحکام اور قوم کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم ملک میں حیران موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ جب بھی پنجاب میں پیغام لائے کراچی میں حالات خراب کرا دیے گئے، لیکن اب اگر کسی نے پرامن انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ راولپنڈی میں بالائی پنجاب زون کی تشکیل 9 کے موقع پر کارکنان سے خطاب میں الطاف حسین نے کہا کہ 25 سالوں سے ایم کیو ایم کی قومی پرواز کو روکا جا رہا ہے۔ جب ہم 25 برسوں سے کوشش کر رہے تھے، کامیابی جو ہم چاہتے تھے غریبوں تک پیغام پہنچتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ نادیدہ ہاتھ کراچی میں سندھ میں ایسے حالات پیدا کر دیتے تھے کہ پھر پنجاب میں ہمارے خلاف صوبہ سرحد میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع ہو جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ جیسا نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے، لیکن ایم کیو ایم پرامن انقلاب کے ذریعے اسے توڑے گی۔ ہم بیلٹ کے ذریعے پرامن طریقے سے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ملک کی با اختیار ادارے بھی سن لیں اور بین الاقوامی ادارے بھی سن لیں، لیکن آزار 98% افراد کی رائے اور عامل انقلاب کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا تو بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم سر کٹا دیں گے، انقلاب لا کر دکھائیں گے۔ پارلیمانی مدت پوری ہونے پر فوٹو سیشن کا احوال آپ نے دیکھا۔ بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جماعت ہی ملک کے حالات بدلے گی۔ بہت جلد پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ باپ کے بعد بیٹے کے رکن اسمبلی بننے کا سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ راولپنڈی میں ایم کیو ایم کے تنظیمی اجتماع سے خطاب میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ چوروں نے 65 برس پاکستان میں بہت کمایا، 32 برس سے ایم کیو ایم کا پیغام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا۔ جلد اسی صوبہ پنجاب میں ایم کیو ایم پاکستان کے سچے، اچھے، نیک، ایماندار، پڑھے لکھے لوگوں ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کرے گی جو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے مسائل کی جڑ کرپٹ سیاسی کلچر اور جاگیردارانہ نظام کو قرار دیا۔ مسائل کی جڑ کرپٹ سیاسی کلچر، موروثی سیاست اور فرسودہ جاگیردارانہ نظام۔
MQM के कायद ने कराची के ज़िमनी इंतखाबात में MQM के 4 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। MQM ने पंजाब में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं इंतखाबात की आमद के साथ ही इल्जाम तराशियां शुरू हो गई हैं। उनका कहना था कि MQM मुल्क में पुरअमन इनकलाब लाना चाहती है, जिसके लिए वो जान दे देंगे लेकिन भागेंगे नहीं। और हम तरीके से मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, इस बात को मुल्की बाइख्तियार इदारे भी सुन लें और बैनुल अक़वामी इदारे भी सुन लें। लेकिन 98% अफराद की राह में और आने इनकलाब को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो भी हम बता देना चाहते हैं कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम सर कटा देंगे, इनकलाब लाकर दिखाएंगे। वो वक्त करीब है जब मुल्क से फरसूदा जागीरदाराना निजाम का सिर्फ खात्मा नहीं होगा, बल्कि मुल्क से चंद मखसूस खानदानों के इख्तिदार की इजारादारी और मोरू की सियासत खत्म हो जाएगी। तो जोहद से पीछे नहीं हटेंगे। रावलपिंडी से इमरान असगर की रिपोर्ट देखते हैं। अल्ताफ हुसैन ने पंजाब अपर जोन के अहदेदारों के ऐलान के बाद रावलपिंडी के मकामी होटल में कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब में कहा, MQM पाकिस्तान की बका, सलामती और खुशहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान ने हमें इज्जत समेत सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसे सिर्फ आंसू और दुख दिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गरीब मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता, बासलाहियत और ईमानदार अफराद जो है वो असेंबलियों में पहुंचे हैं और बड़े बड़े बेलगाम सरमायादारों, जागीरदारों और बड़ों की बराबर में बैठे हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था MQM 98% मजलूम अवाम की नुमाइंदा जमात है, कोई दूसरी जमात इसकी बराबरी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की बका व सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है। अल्ताफ हुसैन ने इंतखाबात से पहले पंजाब भर में पार्टी की तंजीम नौ का भी ऐलान कर दिया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, तब्दीली पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, अब गरीबों की हुक्मरानी को कोई नहीं रोक सकता। तकरीब में बाबर गोरी और MQM के दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि शायद उन्हें पाकिस्तान कभी ना आने दिया जाए, लेकिन वो जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। 25 साल से पंजाब में अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हर बार कराची के हालात खराब कर दिए जाते हैं। हम 25 वर्षों से कोशिश कर रहे थे, कामयाबी जो हम चाहते थे गरीबों तक पैगाम पहुंचता था कि इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया नादीदा हाथ कराची में सिंध में ऐसे हालात पैदा कर देते थे कि फिर पंजाब में हमारे खिलाफ, सूबा सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने रावलपिंडी में कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करती है, कोई और जमात ऐसा दावा नहीं कर सकती। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनकी जमात जैसा चल रहा है वैसा चलने दो के खिलाफ है, मुल्क से स्टेटस को का खात्मा चाहते हैं जो बैलेट से हो सकता है, बुलेट से नहीं। स्टेटस को का खात्मा अगर पाकिस्तान में कोई जमात करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ MQM करेगी। मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनकी जिद्दोजहद पाकिस्तान और इसके आवाम के लिए है। हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान ना आने दिया जाए, लेकिन वो अपनी जिद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारे सुन लें, वो सिर्फ वोट के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि MQM फरसूदा निजाम को बुलेट के जरिए नहीं बैलेट के जरिए तब्दील करेगी। ऐसा निजाम बनाएंगे जिसमें गरीबों को भी
जीने का पूरा हक हो। रावलपिंडी के मकामी होटल में पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों के इंतखाब के बाद कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब के दौरान अल्ताफ हुसैन का कहना था कि एमकेएम मुल्क के गरीबों की वाहिद जमात है। बहुत जल्द हम पंजाब में पढ़े लिखे लोगों का तारीखी जलसा मुनक्कद करेंगे। हम 25 साल से अपना पैगाम मुल्क भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पर खुफिया इदारों और एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का इल्जाम लगाया जाता रहा है। उनका कहना था कि वोट एक बड़ी ताकत है, अब अवाम वोट के जरिए मुल्क बचाने के लिए उठ खड़े हों। मुल्की और गैर मुल्की इदारे सुन लें कि हम स्टेटस को का खात्मा बैलेट के जरिए चाहते हैं, बुलेट के जरिए नहीं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि एमकेएम हकीकी मायनों में जमहूरी निजाम और अदलिया की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि शायद उन्हें पाकिस्तान ना आने दिया जाए, लेकिन चाहे फौज या अदलिया हो, जब तक उनसे हिसाब लेने का निजाम शुरू न कर दूं, आराम से नहीं बैठूंगा। उनका मजीद कहना था कि हमारी जमात मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए जद्दोजहद कर रही है। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को बुनियादी हुकूक बिला इम्तियाज हासिल हो, गरीब को जीने का हक दिया जाए। दूजे पासों मुतहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन आखे जो करप्ट सियासी कल्चर ਅਤੇ जागीरदाराना निजाम के खात्मे ताईं आवाम की किस्मत तब्दील नहीं थी सकती। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन अपने पैगाम आखे जो एमक्यूएम पाकिस्तान जागीरदाराना निजाम का खात्मा चाहती है। एमक्यूएम जन भी अपना जिदोजहद का दायरा मुल्क की सतह से बढ़ाने की कोशिश की है, तो मुख्तलिफ हथकंडियां नाल एमक्यूएम का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। अल्ताफ हुसैन आखे जो पाकिस्तान पहले ही 2 टुकड़े तकसीम थी चुके अते बाकी मुल्कों बचावन की कोशिश करनी है, तो मुल्क जो करप्शन कल्चर का खात्मा करना जरूरी है। मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पंजाब में बड़ा जलसा करेंगे। उनका कहना था कि स्टेटस को में शामिल जमातें कभी इंकलाब नहीं ला सकती। पिंडी में कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब में एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि स्टेटस को सिर्फ एमक्यूएम ही तोड़ेगी और वोट के जरिए पुरअमन इनकलाब लाएगी। हम बता देना चाहते हैं कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम सर कटा देंगे, इनकलाब लाकर दिखाएंगे। एमक्यूएम के कायद का कहना था कि माजी में जब भी एमक्यूएम ने अपना पैगाम पंजाब की आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की, कराची में हालात खराब कर दिए गए और एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया नादीगा हाथ कराची में सिंध में ऐसे हालात पैदा कर देते थे कि फिर पंजाब में हमारे खिलाफ सूबा सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती थी और फिर लोगों के जहन में जहर भरना शुरू कर दिया जाता था और लोग फिर हमारी दावत तो बुझा हमारा नाम सुनना भी गवारा नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एमक्यूएम पंजाब में बहुत बड़ा जलसा करेगी जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बहुत जल्द इसी सूबा पंजाब में एक अजीम और शान जलसा मुनक़िद करेगी जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात में एमक्यूएम हैरानकुन नतीजे हासिल करेगी। नतीजा हासिल न जो हिसाब कंदे चयो आहे त जल्द पंजाब में वॾो जलसो मुनक़िद कयो वेंदो। रावलपिंडी में कारकुननि खे टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त एमक्यूएम जॾहिं बि पंजाब में पंहिंजो पैगाम पहुचाइण जी कोशिश कई आहे त कराची जूं हालतूं ख़राब कई वियो। हुन चयो त एमक्यूएम ख़िलाफ़ हमेशा प्रोपेगेंडा कई वई जॾहिं त संदन पार्टी अवाम जी सभ खां वधीक नुमाइंदगी रखंदड़ पार्टी आहे। अल्ताफ हुसैन चयो त हू 25 सालनि खां पंजाब में पंहिंजो पैगाम पहुचाइण जी कोशिश करे रहिया आहिनि, पर उते घुर्बल मक़सद हासिल नाहे करे सघिया। संदसि चाहो त 65 सालनि में चोरनि मुल्क मां घणो कमायो। चूंडूं वेझो ईंदे ई सियासतदाननि हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम हणण जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे। मुतहिदा सरबराह चयो त हू कराची में नंढी चूंड दौरान चइनि उम्मीदवारनि खे बिना मुक़ाबले चूंडण ते मुबारकबाद पेश करे थो। एमक्यूएम सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो त मुतहिदा जल्द पंजाब में जलसो कंदे जेको मुल्की तारीख़ जो सभ खां वॾो जलसो हूंदो। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुल्क में वोट के जरिए स्टेटस को का खात्मा चाहते हैं।
بیلٹ کے ذریعے نہیں اور جب بھی پنجاب میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی کراچی کے حالات خراب کر دیے گئے۔ راولپنڈی میں متحدہ کے کارکنان سے ٹیلی فون خطاب میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم 98% مظلوم عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان نے کرپشن سمیت ہر بری چیز میں نام کمایا جبکہ تعلیم، صحت اور ترقی میں پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل الیکشن کا دور دورہ ہے اور بہتان تراشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم پاکستان میں سٹیٹس کو ووٹ کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، بولٹ سے نہیں۔ سٹیٹس کو کے خاتمے سے مثبت تبدیلی آئے گی۔ ایم کیو ایم کے قائد نے پنجاب میں تاریخی جلسے کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی پنجاب میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی، کراچی کے حالات خراب کر دیے گئے اور متحدہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جس کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم ملک کی سلامتی اور بقا کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں سب کو برابر حقوق ملے۔